citizen participation. And so we will be recording this session, and we have started the recording. So just a brief overview about what this session is all about. And so Swachh Sarvekshan is basically it's the largest urban sanitation cleanliness survey. It is conducted under the Swachh Bharat Abhiyan, and since 2016, like this activity is being conducted. इसके अंडर जो डिफरेंट सिटीज और टाउन्स हैं उनका सर्वे होता है, उनको मार्क्स अलॉट होते हैं, डिफरेंट रैंकिंग्स आर प्रेजेंटेड based on the cleanliness and various metrics that Vilas will discuss in his presentation. Now, why we are having this discussion like today? So all of us broadly work under the umbrella कि we work for the clean air. We work on air pollution, and we all know that जो solid waste management है, जो municipal waste है, वो हम अलग अलग cities में we are trying to address and work on the waste management issues because it has a lot of linkages to the air pollution. Be it जो open burning होता है या जो landfill में जो जब waste dump होता है वहाँ पे जो fires वगैरह होते हैं. So there are a lot of interlinkages between waste management and air pollution. And because this activity, this Swachh Sarvekshan, specifically addresses the solid waste management issue, so that's why it is and it emphasizes a lot on citizen participation. जो local citizens होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा focus है इस whole activity का. So it is kind of a like opportunity for us कि हम इसके बारे में, इसके क्या nitty-gritties होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाने, and like what are the opportunities that we can capitalize on and overall help us with the work that we are doing in our respective cities and towns. So I'll hand it over to Vilas. Vilas अपना presentation देंगे, and उसके बाद at the end of it, if there is some questions and some discussions that we want to have, we can have it at the end of the presentation. And I would request all of you to please keep your mics on mute. Over to you, Vilas. Yeah, thanks, Sachi. So, as waste burning as one of the key area in which we are targeting. So, apart from vehicular pollution and other sources, वेस्ट बर्निंग इश्यूज ये अभी ज्यादा बढ़ रहा है सिटीज में. तो इसका लिंकेज गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन से है. तो ये कैसे हेल्प कर रहा है वेस्ट बर्निंग रिडक्शन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इसके थ्रू कैसे हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द ऑल दिस सोर्सेस वी कैन say that 2 to 24% of the municipal solid waste generated in the cities get burned. तो ये different cities के लिए. And open waste burning is likely to become India's largest source of air pollution by 2035. So again, the problem of waste burning and C&D waste from different cities, they are a major contribution to the city's air pollution. तो ये एक बार वेस्ट कलेक्ट करने के बाद लैंडफिल में जब जाता है ये वेस्ट, तो वहां पे भी मेजर सिटीज में लैंडफिल बर्निंग का या फिर लैंडफिल फायर का इश्यूज होता है. तो वहां पे भी ये मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में. अगेन हाउ स्वच्छ भारत मिशन एंड under that big vertical, Swachh Sarvekshan and solid waste management is helping improving the air quality. तो ये basically focus करता है waste reduction पे, and in last years and this year's toolkit, they are focusing on RRR model, that is RRR center and zero waste events. तो ये mostly वेस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है और वेस्ट प्रोसेसिंग एट सोर्स इसको प्रमोट करता है. देन इसके बाद लैंडफिल मैनेजमेंट, देन सिटीजन पार्टिसिपेशन, गार्बेज फ्री सिटी प्रोटोकॉल, ये अलग प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया है सभी सिटीज के लिए. तो इसके थ्रू वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग एट सोर्स
प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, इसके थ्रू वेस्ट को सर्कुलर इकोनॉमी में वो लाना चाहते हैं, और जिससे कि लैंडफिल पे कम बर्डन हो और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट रिसाइकल या रिपर्पस करके उसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ऐसे प्रोटोकॉल में लिखा है। तो यह स्वच्छ भारत मिशन में ज्यादा करके पार्टिसिपेटरी अप्रोच है और सिटीजन पार्टिसिपेशन पे ज्यादा फोकस है। अगर हम दो टूल किट को कंपेयर करेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एंड स्वच्छ सर्वेक्षण, तो इसमें हमें दिखाई देता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सिटीजन पार्टिसिपेशन का लेस स्कोप है, मतलब वहां पे सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें है, यानी यूएलबी के ऊपर ज्यादा उस सर्वेक्षण में लोड दिया गया है, और फंड एलोकेशन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सिटीज के परफॉर्मेंस पे होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। स्वच्छ सर्वेक्षण में ऐसा नहीं है, हर सिटीज को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन क्राइटेरिया एक सेट ऑफ फंड एलोकेट किया जाता है, और जो सिटीज अच्छा परफॉर्म करती है उनको एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन्हें एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है। तो वी कैन कंपेयर दिस, ये दोनों टूल किट मैंने एनेक्सचर में दिए हैं, तो वो लास्ट में आपको जब हम पीपीटी शेयर करेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। देन नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण, ये स्वच्छ भारत के अंडर एक हेल्दी कंपटीशन सिटीज के बीच में बनाया गया है, जिससे सिटीज मोटिवेट हो कि वो अच्छा काम करे इसमें। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एज ए एक्ट ये मिशन या फिर एक सर्वेक्षण मिशन को एक्सीलरेट करेगा। पहले स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च किया तब इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज्यादा सिटीज अपना योगदान नहीं दे रही थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह डिसाइड किया कि हम एक हेल्दी कंपटीशन इसके रखेंगे और इसके कुछ इंडिकेटर सेट करेंगे ताकि सिटीज उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करें। देन इसका एक मेथोडोलॉजी होता है, एक टूल किट उन्होंने बनाया है। टूल किट के जो भी इंडिकेटर है उसमें सिटीजन का एक कॉल वैलिडेशन लिया जाता है, जिसमें सिटीजन्स को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे गार्बेज की गाड़ी आती है कि नहीं, कलेक्शन करने के लिए वो अलग अलग कचरा लेते हैं कि नहीं, आप अलग अलग करके देते हो कि नहीं, या फिर आपको सिटीज के रैंक के बारे में क्या पता है। तो ये ऐसे सवाल पूछ के पहले उनका ऑन कॉल वैलिडेशन किया जाता है, फिर ऑन साइट मतलब फील्ड पे जाके एक सर्वेक्षण किया जाता है, वहां पे भी सिटीजन का फीडबैक लिया जाता है, और सिटीज के जो प्रोसेसिंग प्लांट है उनको भी असेस किया जाता है, उनके लॉग बुक और सब रिकॉर्ड वहां पे चेक किए जाते हैं। एंड देन फील्ड असेसमेंट में इसके बाद सिटीजन असेसमेंट होने के बाद बाकी चीजें जैसे कि वहां पे आजू बाजू में कुछ कचरा उन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, या फिर जो बैक लेन है या फिर कमर्शियल एरियाज है या पब्लिक प्लेसेस है वहां पे कुछ वेस्ट उन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऐसे हर सिटी को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है, और 4 जोन के एक एक सैंपल लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये असेसमेंट काम करता है। इसमें ऑलमोस्ट ऑल यूएलबीज उनको कैटेगराइज किया जाता है पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से। तो 1 लाख के बिलो जो यूएलबी से जिनको हम काउंसिल कहते हैं, तो उनके अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रुप किए हैं। देन अगेन 1 लाख प्लस सिटीज कॉर्पोरेशंस, उनके भी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया किए हैं। तो ये सारे सिटीज का असेसमेंट होता है ईयरली, और वहां से उनका रैंकिंग किया जाता है। तो इसके पैरामीटर्स इन शॉर्ट हम देखेंगे, पूरा टूल किट फिर से मैंने एनेक्सचर में दिया है। तो इन शॉर्ट इसके कुछ इंडिकेटर देखते हैं। तो 60% मार्क्स इसके सर्विस लेवल प्रोग्रेस पे है, जो कि यूएलबीज के जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट या फिर उनका कलेक्शन सिस्टम या सेग्रीगेशन का परसेंटेज, प्रोसेसिंग का परसेंटेज, कलेक्शन का परसेंटेज, इसके ऊपर उन्हें मार्क दिए जाते हैं। तो पहले यूएलबी को क्लेम करना पड़ता है कि मान लो हमारे यहाँ पे X% या फिर 90% हम कलेक्शन करते हैं वेस्ट का, तो यूएलबी क्लेम करती है। उसके बाद उसका वैलिडेशन थ्रू थर्ड पार्टी किया जाता है, असेसमेंट असेसर के थ्रू, ऑन ग्राउंड भी किया जाता है उसको।
एंड देन उसके बाद विजिबल क्लीनलीनेस, इसमें बैक लेन, कमर्शियल एरियाज, पब्लिक एरियाज, वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, वहाँ की क्लीनलीनेस चेक की जाती है। देन सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट, सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट में नॉन इनकैप सिटीज, मतलब छोटी जो सिटीज है उनके लिए सिर्फ नोटिफिकेशन देना कि हमारी डिस्पोजल साइट कहाँ पे है, और कलेक्शन, मोबाइल कलेक्शन यूनिट, जो कुछ भी सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा उसके लिए एक कलेक्शन यूनिट क्या है, उसका टोल फ्री नंबर, और उसके क्या चार्जेस है कलेक्शन के लिए, वो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ता है। और कलेक्शन के बाद आपको उसको आप रीयूज कैसे करते हो, मान लो लैंड फिलिंग के लिए या फिर लो लाइंग एरिया में उसको भरने के लिए, ये उनको मैंडेटरी है। एनकैप सिटीज जो है उनको प्रोसेसिंग प्लांट होना कंपलसरी है। ये सब चीजें मान लो नोटिफिकेशन से लेकर, कलेक्शन से लेकर, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग, उसको अलग अलग करना, उससे कुछ रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट बनाना, मान लो कुछ मटेरियल से उन्होंने पेवर ब्लॉक बना दिए, तो पेवर ब्लॉक बनाने तक ये प्रोसेस उनको कंपलसरी है एनकैप सिटीज के लिए। इसके लिए उनको अलग फंड भी दिया जाता है सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तैयार करने के लिए। तो ये चीजें, ये डिफरेंस है एनकैप सिटी और नॉन एनकैप सिटी में इस इंडिकेटर के अंदर। देन लेगेसी वेस्ट रिमेडिएशन, मतलब जो लैंडफिल में बहुत सालों से जो कचरा जो डंप किया जाता है, उसका रिमेडिएशन करना कंपलसरी है सिटीज को। तो बायोमाइनिंग की प्रोसेस से वो जो सारा वेस्ट जमा हुआ है उसको, वो लैंड को रिक्लेम करना है, और उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन करके उसको रीयूज करना है। जो कुछ भी वेस्ट होता है तो उसका कंपोस्टिंग करना होता है, और जो कुछ बहुत सालों से प्लास्टिक जमा होता है उसको वो आरडीपी के लिए भेज देते हैं। देन सैनिटेशन के कुछ पैरामीटर है, टॉयलेट क्लीनिंग, पब्लिक टॉयलेट एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स का। देन नच इंडिकेटर्स है, उसको हम डिटेल में देखेंगे इसके बाद में। एक इनोवेशन का एक मुद्दा है, इनोवेशन में सिटीज जो कुछ वेस्ट मैनेजमेंट या सैनिटेशन की जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या इनोवेशन या फिर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके लिए भी अलग मार्क्स है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्चुअल वेस्ट एक्सचेंज सेंटर ऐसे इंदौर में किया था, मतलब एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें मान लो किसी सिटीजन को अपने घर की कुछ चीजें गिव अवे करनी है या फिर देनी है, और किसी को वो चीज चाहिए, तो ऐसे दोनों स्टेक होल्डर वहां पे होंगे और वो आपस में अपना वेस्ट एक्सचेंज कर लेंगे। तो इससे वेस्ट रिडक्शन होता है। ऐसे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए उनको अवार्ड मिला था। एंड सैनिटेशन में जो कुछ टॉयलेट क्लीनिंग या फिर पब्लिक टॉयलेट का मेंटेनेंस के लिए जो कुछ खर्चा होता है, तो वो टॉयलेट ब्लॉक के बाजू में एक वो बिल्डिंग का इस्तेमाल करने, वहां से एक एटीएम का इंस्टॉलेशन किया था, ताकि उससे कुछ रिवेन्यू आ जाए या फिर कुछ एडवर्टाइज किया था। तो ये रिवेन्यू जनरेशन का एक बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको भी अवार्ड मिला था। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। देन सर्टिफिकेशन दूसरा वर्टिकल है, जिसको 26% मार्क्स होते हैं, जिसमें गार्बेज फ्री सिटी प्रोटोकॉल एंड ओडीएफ, ओपन डिफिकेशन फ्री, ये दो सर्टिफिकेट यूएलबीस को लेने पड़ते हैं। तो इसके अलग अलग स्टेजेस है। गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार एंड 7 स्टार ऐसे स्टार रेटिंग होता है। एंड ओडीएफ में ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस एंड वाटर प्लस ऐसे वर्टिकल होते हैं। तो गार्बेज फ्री सिटी में उनको बिन फ्री सिटी होना कंपलसरी होता है। देन बल्क वेस्ट जनरेटर जो होते हैं उनको जो कुछ वेट वेस्ट उन्होंने जनरेट किया है वहां पे उनको ऑन साइट प्रोसेसिंग करना कंपलसरी होता है। देन वहां पे कुछ भी जीवीपी या गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट या फिर जिनको हम क्रॉनिक स्पॉट बोलते हैं, ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देने चाहिए, तभी उनको वो स्टार रेटिंग मिलती है। और एक उनको डिक्लेरेशन लेना पड़ता है हर एक वार्ड मेंबर से। वार्ड मेंबर के एक वार्ड के कॉर्पोरेटर या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर, मान लो एनजीओ हो, प्राइवेट कंपनीज हो, वहाँ के स्कूल हो, वहाँ के पेट्रोल पंप हो, उनसे एक डिक्लेरेशन ले जाता है कि हमारे वार्ड में कोई भी आजू बाजू में कचरा कोई फेंकता नहीं है, और ये वार्ड पूरा गार्बेज फ्री है। ऐसे डिक्लेरेशन
अलग अलग स्टेक होल्डर से लिया जाता है। उसके बाद सिटी को वो स्टार रेटिंग दी जाती है। देन उसके बाद 14% मार्क्स जन आंदोलन में है। ये 14% मार्क्स है, लेकिन जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस है वहां पे भी सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है। तो वी कैन कंक्लूड कि सिटीजन पार्टिसिपेशन हर वर्टिकल में है। तो ये स्पेशल जन आंदोलन, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का फीडबैक, वहाँ का यूएलबीज ने जो डिसाइड किया है ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता कैंपेन को पॉपुलराइज करने के लिए, उसका काम। देन लोगों का इनिशिएटिव, जिनको स्वच्छता चैंपियन बोला जाता है, उनका काम। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय सिटीजन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन महुआ कैंपेन। मतलब जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, जैसे गांधी जयंती को वो वीक डिक्लेयर किया जाता है कि स्वच्छता पखवाड़ा वीक। तो उस पखवाड़ा वीक में कितने सिटीजन ने पार्टिसिपेशन उस सिटी से किया, तो ऐसे उनका पार्टिसिपेशन उसमें देखा जाता है। देन होम कंपोस्टिंग, अभी ये बल्क वेस्ट जनरेटर जो है, जो कि 100 केजी पर डे उनका एवरेज वेस्ट जनरेट होता है, वो बल्क वेस्ट जनरेटर उनको तो कंपलसरी है वेट वेस्ट प्रोसेसिंग करना। लेकिन जो नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर है, मान लो इंडिविजुअल हाउस, अगर वो भी कंपोस्टिंग करते हैं एट सोर्स, तो उसके भी मार्क यूएलबी को मिलते हैं। देन उसके बाद ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसका स्वच्छता है, उसको हम डिटेल में इसके बाद देखेंगे। देन ये सर्विस लेवल प्रोग्रेस का नज इंडिकेटर हम फिर से एक बार चेक करते हैं, जिसमें सिटीजन का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। इसमें यूएलबी का इनिशिएटिव होते हैं, आरआरआर सेंटर, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर, जो यूएलबी ने लास्ट ईयर किए थे, उनका 1 ईयर उनको कंप्लीट करना होता है। मान लो अगर लास्ट ईयर किसी यूएलबी ने आरआरआर सेंटर शुरू किया है, तो 1 ईयर तक उन्होंने कितना कचरा लैंडफिल में जाने से या फिर प्रोसेसिंग प्लांट में जाने से बचा दिया, उसके ऊपर उनका असेसमेंट होता है। देन एसबीएम एनयूएलएम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें उनको इंटीग्रेट करना होता है, स्पेशली वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर सैनिटरी वर्कर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें स्वच्छ भारत मिशन में उनको इंटीग्रेट करना होता है या फिर उनको उसके थ्रू काम देना होता है, उसके भी मार्क्स यूएलबी को दिए जाते हैं। देन कैपेसिटी बिल्डिंग का एक वर्टिकल है। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो कुछ सिटीज के सेंट्री इंस्पेक्टर या फिर सेंट्री वर्कर्स है, या फिर जो कोई सैनिटेशन के रिगार्डिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका ट्रेनिंग, उनकी एक्सपोजर विजिट, वो कितने की है साल में, उसके लिए भी सिटीज को मार्क्स होते हैं। देन बेनिफिट एक्सटेंडेड टू सेंट्री वर्कर्स, सेंट्री वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट यूएलबीस ने दिए हैं, उसके लिए भी उनको अलग मार्क होते हैं। मान लो उनका इंश्योरेंस होना या फिर उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव किट देना, ये सारी चीजें उनको इसमें मैंडेटरी है। देन वेस्ट टू वंडर पार्क या फिर ब्यूटिफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन में ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी यूएलबी को मार्क्स होते हैं। तो इसमें जो कुछ पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे पेंटिंग करना या फिर कुछ म्यूरल इंस्टॉल करना, इसके बाद कुछ सिटीजन लेड इनिशिएटिव भी होते हैं उसमें, या फिर जो ब्रेक स्लम में उसको ब्यूटिफिकेशन के थ्रू रिजुनेट करना, ऐसे इनिशिएटिव वहां पे ले जाते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन नेज इंडिकेटर में आता है। तो इसमें जीरो वेस्ट इवेंट करना कंपलसरी है, और ये यूएलबी को ट्रैक करना पड़ता है इसमें। इसके बाद आत्मनिर्भर वार्ड एक कंसेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। यूथ पार्टिसिपेशन, कितने कॉलेज के स्टूडेंट को स्वच्छ भारत मिशन में यूएलबी ने इंटीग्रेट किया है, उनको एज अ इंटर्नशिप आप दे रहे हैं कि नहीं, या फिर उनसे कुछ पार्टिसिपेशन या वॉलंटियरिंग उनसे करवा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक इंडिकेटर उसमें है। तो उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्वच्छता चैंपियन, अगर कोई सैनिटेशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रहा है सिटीजन, तो उसका रिकॉग्निशन या फिर उसको अवार्ड देना, या फिर टैक्स बेनिफिट भी कई सिटी में दिया जाता है
कि कंपोस्टिंग अगर आप करते हो तो आपको 2% बेनिफिट टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स में दिया जाता है। ऐसे भी इनिशिएटिव उसमें लिए जाते हैं। एंड अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय सिटीजन। इसमें टोटली अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो citizen groups like us can take the advantage of this and they can reach to ULBs की हम we can integrate या फिर we can help you in implementation of स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें सोर्स सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ये डेली का जो काम होता है उसमें आप यूएलबी को हेल्प कर सकते हैं। इसका आप आईईसी कर सकते हैं या फिर बिहेवियर चेंज में भी इसको आप यूएलबी को मदद कर सकते हैं। देन स्कूल पार्टिसिपेशन के लिए भी कुछ मार्क्स है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो स्कूल को आप स्कूल में अगर सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है, उस कंपोस्टिंग हो रहा है, तो उसका बेनिफिट अर्बन लोकल बॉडी को मिलेगा मार्क्स में। देन एनकरेज द आरआरआर इनिशिएटिव। आरआरआर इनिशिएटिव के लिए आप कैसे वो उस इनिशिएटिव का कैसे आप फायदा ले रहे हो, उसको आप जो कुछ भी यूएलबी ने शुरू किया है उसमें आप पार्टिसिपेशन कैसे कर रहे हो, उसके लिए भी अलग मार्क्स होते हैं। देन कम्युनिटी लेड इनोवेटिव इन वेस्ट मैनेजमेंट सच एज कम्युनिटी कंपोस्टिंग। कुछ वार्ड में मान लो 50 घर मिलके कोई कम्युनिटी कंपोस्टिंग हो रहा है एक जगह पे, तो वो ऐसे इनिशिएटिव भी उसके भी मार्क्स यूएलबी को मिलते हैं। देन बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव लाइक कई सिटी में ऑटो वाला जो होते हैं सिटी के, जो फिर ऑटो वालों का जो यूनियन होता है, यूएलबी ने कुछ जगह पे अप्रोच किया है ऑटो वालों को कि अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन मान लो कुछ कोई टूरिस्ट है, तो अगर वो सिटी बिन फ्री सिटी हुआ है, लेकिन अगर टूरिस्ट आया है तो उसको कोई बिन नहीं दिखाई देगा तो वो कचरा कहाँ पे डालेगा। तो ऑटो वाला ने एक डस्टबिन अपने ऑटो में रखा है। ऐसे भी इनिशिएटिव कई सिटी में लिए गए। then citizen group can do usage of complaint redressal mechanism like स्वच्छता ऐप and local app। उसको डिटेल में देखेंगे। adherence to zero waste events, then home composting by an individual, collective efforts to collaborate with ULB for local vigilance। तो local vigilance के भी बहुत सारे एग्जांपल है। कई जगह पे स्वच्छता मित्र नाम का इनिशिएटिव है, जहाँ पे वार्ड में 2 या 3 लोग वॉलंटियर करते हैं कि कोई लॉ ब्रेक किया जाता है तो वो यूएलबी को रिपोर्ट करते हैं। उनको वो स्वच्छता से वो क्या स्वच्छता मित्र नाम से उनको टैग दिया गया है। तो ऐसे भी इनिशिएटिव कई जगह पे ले जाते हैं। देन सिटीजन ग्रुप कैन सपोर्ट द सफाई मित्र। सैनिटरी वर्कर जिनको स्वच्छ भारत में सफाई मित्र नाम दिया गया है टू मेंटेन देयर डिग्निटी, उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके डेली काम में। मतलब बहुत सारी जगह पे लोग झगड़ा करते हैं उनके साथ, तो सिटीजन ग्रुप कैन लीड एन इनिशिएटिव की उनको उनकी डिग्निटी से उनको सम्मान दिया जाए। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ होते हैं जिनको एसबीएम में इंटीग्रेट किया गया होता है। मान लो किसी ग्रुप को क्लोथ बैग बनाने का कुछ काम दिया है, तो उनके काम को बढ़ावा देना या फिर उनको सपोर्ट करना, ये काम भी सिटीजन ग्रुप कर सकते हैं। देन आत्मनिर्भर वार्ड को इसके बाद डिटेल में देखेंगे। जीवीपी ट्रांसफॉर्मेशन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसका भी कुछ फोटोज है तो वो भी वहां पे डिस्कस करेंगे। ये आरआरआर सेंटर बेसिकली स्वच्छ भारत में ऐसा इनिशिएटिव है कि आप प्रोसेसिंग प्लांट जो कुछ भी वेस्ट होता है वो प्रोसेसिंग प्लांट या फिर लैंडफिल की तरफ ना जाए, तो उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो कई सारी यूएलबीज ने वेस्ट एक्सचेंज सेंटर शुरू किए हैं, या फिर कई जगह पे निकी की दीवार जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, जिसको नहीं चाहिए वो रखता है, जिसको चाहिए वो लेके जाता है। या फिर बर्तन बैंक भी होता है कई जगह पे। मान लो शादी या ऐसे बड़े फंक्शन में प्लास्टिक या फिर थर्माकोल की जो प्लेट होती है वो उसको अवॉइड करने के लिए बर्तन बैंक होता है, जहाँ पे आप वो बर्तन बैंक रेंट पे ले सकते हो और काम होने के बाद उनको रिटर्न कर सकते हो। देन क्लॉथ बैग बैंक भी होता है। कोई किराना स्टोर या फिर कोई एसोसिएशन है किराना स्टोर का,
वहाँ पे क्लॉथ बैग रखे जाते हैं यूएलबी के द्वारा, और वो अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है या फिर आप घर जाते वक्त क्लॉथ बैग लेना भूलते हो, प्लास्टिक का कैरी बैग लेने की वजह से बहुत सारा वेस्ट बढ़ता है। तो आप ये दुकान पे जाके उनको क्लॉथ बैग बैंक अगर उसने शुरू किया है, तो वहाँ पे डिपॉजिट देके वो बैग लेकर आप आपका जो कुछ ग्रोसरी या फिर वेजिटेबल या जो कुछ आप लेना चाहते हैं, आप घर जाके अ, वो रिटर्न भी उनको कर सकते हैं डिपॉजिट लेने के बाद। देन कई सिटी ने वर्चुअल वेस्ट एक्सचेंजिंग पोर्टल भी शुरू किया है, जैसे इंदौर ने किया था कि जैसे ओएलएक्स का जो ऐप होता है, वहाँ पे सेल वगैरह होता है, लेकिन ये वर्चुअल वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल जैसे होता है, जिसको चाहिए वो जिसको कुछ चीजें अपनी या कोई शिफ्ट कर रहा है वहां से, या कोई चीज अपनी गिव अवे करके करना चाहता है, तो वो इस ऐप पे अपना सामान डाल देता है और जिसको जो चाहिए वो वहां से रिक्वेस्ट भेजता है। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रैक भी हो जाता है, तो यूएलबी को उसका प्रूफ देना होता है कि कितना वेस्ट आपने चेन में उस चेन में आरआरआर चेन में सर्कुलेट किया। तो ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी उनको ट्रैक करना इजी हो जाता है। ये भी कुछ एग्जांपल है, बर्तन बैंक या फिर किताबें खिलौने, ऐसे भी एग्जांपल है। हाँ, ये आत्मनिर्भर वार्ड एक इंडिकेटर है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण की टूल किट में। तो इसमें एटलीस्ट एक वार्ड उनको आत्मनिर्भर वार्ड बनवाना है, जिसमें जीरो कलेक्शन ऑफ वेट वेस्ट होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी वेट वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वार्ड में, वो कलेक्ट नहीं होगा यूएलबी के द्वारा, वो वहां पे ही प्रोसेस होगा उसी वार्ड में। इसको आप कम्युनिटी कंपोस्टिंग के थ्रू करा सकते हैं, या फिर जो कुछ भी वहां पे बल्क वेस्ट जनरेटर है, वो अपना अगर सारा वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं और यूएलबी को वहां पे वेट वेस्ट करने कलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो वार्ड आत्मनिर्भर वार्ड डिक्लेयर किया जाता है। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज को भी एक काम दिया होता है कि आप भी लोगों को एंकरेज करो कि ऐसे वार्ड आप शुरू करो, और इसमें जो वार्ड कॉर्पोरेटर होता है या फिर स्टेक होल्डर होते हैं, एनजीओ होते हैं या फिर कंपनीज होते हैं, इनको साथ मिलके भी ये सारे स्टेक होल्डर साथ मिलके भी इस इनिशिएटिव को शुरू कर सकते हैं। इसमें 100% ऑफ सेग्रीगेशन वेट ऑफ वेस्ट होना चाहिए 3 कैटेगरी में, ड्राई वेट एंड हजार्डस। और इसका 100% वेट वेस्ट प्रोसेस होना चाहिए एट सोर्स इन द वार्ड, एंड ड्राई वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए इसमें, अगर एंड दे कैन इंटीग्रेट एनी रिसाइकलर फॉर दैट वार्ड टू टेक अवे दैट ड्राई वेस्ट। देन ये एक इंडिकेटर थोड़ा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। इसको बहुत सारी जगह पे विरोध हुआ है कि बिन फ्री वार्ड हम बहुत जगह पे देखते हैं। जो राइट साइड में जो बिन है, वैसे पहले हमें दिखते थे, लेकिन स्वच्छ भारत में एक इंडिकेटर है कि आप 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन अगर आप क्लेम करते हो, तो आप इस तरफ की बिन आप हटा सकते हो वहां से, क्योंकि एसपी लोअर हो जाता है बहुत जगह पे, और उससे हेल्थ हजार्ड भी होते हैं या फिर एनिमल भी उस पे जाके वो खाते हैं, तो उसका हेल्थ हजार्ड बहुत सारा है। इसलिए अ, ऐसे भी नबी बहुत कम जगह पे दिखते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है। और जो लेफ्ट साइड में है ट्विन बिन, तो वो कमर्शियल एरिया में वो होना जरूरी है, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए वो रखा होता है। तो जो कोई बाहर से सिटी में आ रहा है, तो उनके लिए कमर्शियल या पब्लिक एरिया में ऐसे बिन ट्विन बिन रखे जाते हैं। तो ये इसमें इंकरेज किया है, और जो राइट साइड में दिखा है उसको डिस्करेज किया है। तो ऐसे बिन दिखना अभी कम हो गया है, और बहुत जगह पे बिन फ्री सिटी हो गया है। और जहाँ पे यह पॉसिबल नहीं हुआ, तो कुछ कुछ वार्ड वहाँ पे बिन फ्री वार्ड डिक्लेयर किए हैं। जीरो वेस्ट इवेंट, इसको भी बहुत सारा प्रमोशन दिया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन में। तो इसमें जो कुछ रिसाइकल न होने वाला मटेरियल है, उसको यूज ना करने की उसको प्रमोशन किया जा रहा है। तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, जो प्लास्टिक के चमचे या प्लास्टिक की प्लेट जो बड़े बड़े फंक्शन में यूज किए जाते हैं, तो वो यूज ना करके उसका अल्टरनेटिव जो रिसाइकलेबल है, ऐसा मटेरियल वहाँ पे यूज करना कंपलसरी होता है।
और इसका डॉक्यूमेंटेशन सिटीजन या फिर यूएलबी दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूएलबी को दे सकते हैं। यूएलबी उसको स्वच्छता पोर्टल में अपलोड कर सकता है। तो इसमें जो शादी या फिर बर्थडे पार्टीज में जो कुछ भी वेट वेस्ट जनरेट होता है तो उसको कंपोस्ट करना जरूरी है, या फिर रीयूटिलाइज। मान लो अगर कुछ खाना बचता है तो वो लोगों में बांट देना, या फिर उसको चैनलाइज करना, ये कंपल्सरी होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक या डेकोरेशन मटेरियल या पीओपी जो होता है उसको उसका यूसेज नहीं करना चाहिए। तो इसमें इसके ये इंडिकेटर है। और जो कुछ चीजें लगती है उसमें तो वो बर्तन बैंक या फिर आरआर सेंटर से आप ले सकते हो। बल्क वेस्ट जनरल अगेन, जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट है अर्बन लोकल बॉडी के जुरिस्डिक्शन में, उसका अगर एवरेज रेट ऑफ वेस्ट जनरेशन 100 kg से ज्यादा अगर है तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर में आता है। इसमें कॉलेजेस या मैरिज हॉल्स या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटीज या फिर हॉस्टल, ये सारे आते हैं। तो इसका रिकॉर्ड अर्बन लोकल बॉडी को बनाना पड़ता है और उनको एक नोटिफिकेशन देना होता है कि यू आर फॉलोइंग अंडर द बल्क वेस्ट जनरेटर क्राइटेरिया एंड यू हैव टू प्रोसेस योर ओन वेस्ट। तो ऐसे एक नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए यूएलबी के थ्रू। और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को ऑन साइट वेट वेस्ट प्रोसेसिंग करना कंपलसरी है। ड्राई वेस्ट के लिए वो किसी रिसाइकलर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अर्बन लोकल बॉडी उनका ड्राई वेस्ट उठाती है तो उसके लिए उनको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो ये इसके क्राइटेरिया है। देन सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स कैसे रिमूव किए हैं, ये बेंगलोर का एग्जांपल है। तो इसमें एंटायरली पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये ऊपर इसमें लिखा है कि टीम VMware एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड द अगली इंडियन। तो अगली इंडियन एक ग्रुप ऑफ सिटीजन है बेंगलोर में, जो हर संडे ऐसे स्पॉट फिक्स करते हैं और वहां पे उसका वेस्ट वहां पे ना लोग ना फेंके, इसके लिए बिहेवियर चेंज करने के लिए ऐसे डिजाइन या फिर पेंटिंग या फिर कुछ म्यूरल या फिर प्लांटेशन करते हैं ताकि वहां पे वेस्ट फेंका जाए। तो ऐसे बेंगलोर या फिर अदर सिटीज का भी एग्जांपल्स है ऐसे बहुत सारे। देन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस बाय यूएलबी एंड सिटीजन। तो इसमें ये 8 पैरामीटर, इस इनमें से एक विषय के ऊपर यूएलबी को इनोवेशन करना पड़ता है, या फिर अगर कोई सिटीजन है उस यूएलबी के जुरिस्डिक्शन में, अगर उसका भी कुछ इनोवेशन है तो यूएलबी उसको स्वच्छता पोर्टल पे अप्लाई कर सकती है मार्क्स के लिए। तो इसमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कन्वर्जेंस अक्रॉस अदर फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट जैसे एनयूएलएम है, या फिर जो कुछ भी बाकी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है एसपीएम में, ये इसका एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी काउंट किया जाता है। देन आईसी बिहेवियर चेंज, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, मतलब अगर कंपोस्ट सेल करने के लिए कुछ इनोवेटिव टेक्निक या फिर इनोवेटिव वे किसी यूएलबी ने किया है तो वो भी इसके अंडर क्लेम कर सकती है। देन मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट, इसका सासवड जो पुणे के पास में एक छोटा अर्बन लोकल बॉडी है उसको 2018 में अवार्ड मिला था बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें उन्होंने जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए एक अलग से जो वेस्ट व्हीकल होता है उसके उसमें एक अलग से रेड कलर का एक डब्बा बनवाया था और उसमें वो कलेक्ट करते थे मेंस्ट्रुअल वेस्ट। और उसमें कुछ एक डिसइंफेक्टिंग केमिकल डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते थे और बाद में और प्रोसेसिंग प्लांट पे जाके उसको ट्रीटमेंट करते थे। तो इसका उनको अवार्ड मिला है। देन जेंडर स्पेसिफिक कुछ सोल्यूशन होते हैं, जैसे पारादीप सिटी उड़ीसा में है, इसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर को इंटीग्रेट किया है एसपीएम में। तो कलेक्शन या फिर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए उनको काम दिया था, या फिर प्रोसेसिंग साइड पे भी उनको काम दिया था। तो ऐसे उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक सोल्यूशन एक इनोवेशन बनाया था, इसके लिए उनको अवार्ड मिला था। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल है उसके।
देन ग्रीवेंस रिड्रेसल थ्रू स्वच्छता ऐप एंड लोकल ऐप। तो इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक स्वच्छता ऐप बनाया है, उसका लिंक मैंने दिया है इसमें पीपीटी में बाद में, या फिर यूएलबी लोकल ऐप भी क्लेम कर सकती है। जैसे पुणे में पीएमसी केयर है, वहाँ पे लोग कंप्लेंट पोस्ट कर सकते हैं और उसका भी क्लेम यूएलबी कर सकते हैं। तो ये स्वच्छता ऐप का कुछ स्क्रीनशॉट्स है। पहले में हम देख सकते हैं कि आप कंप्लेंट कैसे, आपको डैशबोर्ड कैसे दिखता है। आप यहाँ पे स्टेटस व्यू कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट रिजोल्व आपके सेटिस्फेक्शन के अगर अनुसार नहीं होती तो आप उसको रीओपन भी कर सकते हैं। देन ये सारी कैटेगरी है वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डेब्रिज रिमूवल, बर्निंग ऑफ गार्बेज, देन डस्टबिन नॉट क्लीन, गार्बेज डंप या फिर गार्बेज व्हीकल नॉट अराइव्ड, ऐसे कंप्लेंट आप उसमें कर सकते हो। देन उसमें और एक फीचर है इस ऐप में कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नियर बाय कंप्लेंट भी आप देख सकते हैं। मान लो मैं अगर यहाँ पे सेगर रोड पे रहता हूँ तो मुझे आजू बाजू के जो कंप्लेंट है जो अदर सिटीजन ने डाले हैं उसमें वो भी मुझे दिखते हैं। और उसको अगर मैं वोट करता हूँ, इसमें वो जो ऑप्शन दिया है उसको अगर मैं वोट करता हूँ तो वो एक क्रिटिकल इशू रेज होता है। तो यहाँ पे आप जब वोट करते हो तो आपको ऐसे मैसेज आता है कि 10 मोर वोट्स नीडेड टू पावर अप एज अ ट्रेंडिंग इशू। तो 10 अगर लोगों ने इसको वोट किया इस कंप्लेंट को तो वो एक ट्रेंडिंग इशू बन जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये लिंक है बहुत सारे। तो इसका फर्स्ट टूल किट का लिंक है। देन सेकंड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का एक टूल किट है। स्वच्छता मुआ ऐप एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है, iOS पे भी चलता है वो, तो उसका भी एक लिंक है। देन ये वेबसाइट है एसबीएम अर्बन, इस पे आप रिजल्ट देख सकते हो लास्ट ईयर के असेसमेंट कैसे किया गया था। उसमें आप आईईसी मटेरियल भी देख सकते हो, जो डिफरेंट जीआर आते हैं उसमें वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। जीरो वेस्ट वेडिंग सेरेमनी का एक अच्छा वीडियो है, ये दो अच्छे वीडियो है, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। देन आरआरआर सेंटर आपकी सिटी में कहाँ पे है वो यूएलबी को आप अपलोड करना होता है, तो उसका लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन ये अगली इंडियन जो हमने एग्जांपल दिखा है, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट कैसे रिमूव किया उन्होंने, उसका एफबी पेज का लिंक है। आप वहाँ पे जाके और सारे उनके काम देख सकते हो। या थैंक यू। Thank you, Vilas. Very good presentation, very technical and like very broad things concised in a short time, and we are well within our time. So I see two questions in the chat box. One is from Shweta and one is from Pampa. If you can like see the chat box, or I'll read it out, and then if we have time, we can have discussion on the respective. So Shweta is asking, ki, can cities pick and choose from the things they want to report back on, or and they can ask for more funds? If yes, is there a timeline to do this where they have to commit what they're planning to do beforehand, or they just report at the end of the period? तो इसका सो डज शी मीन कि ये क्लेम करने का प्रोसेस, राइट? So in the sense that, so if I just may explain, so is it that PMC will have to say now, okay, we are planning to do these things. At the year end, they'll say that we've done these things. So how many, there'll be a rating then, and then they'll get funds accordingly. So when does PMC typically decide what to do is what I'm trying to gauge. And that's why I'm asking this question. तो अर्ली हर साल में इसका टूल किट रिलीज होता है। मान लो ये 2024 का टूल किट है तो 23 का भी टूल किट अलग होता है। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो महुआ के द्वारा एक टूल किट जारी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पीएमसी को काम करना होता है कि उस इंडिकेटर के उनको उनको क्या क्या एक्शन प्लान उन्होंने बनाया है, तो ऐसे उनका काम होना चाहिए। और ईयर एंड के बाद उनको एक डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद फिर असेसर आता है और ऑन फील्ड वो चेक करता है। I hope I understood your question correctly. Yes. Thanks.
So like I have just a follow-up question on that, Vilas, कि ये जो भी matrix हैं जो या indicators हैं, so उसमें pick and choose जैसा कोई system नहीं होता, मतलब नहीं तो हर उस पे report करना है and they can do it accordingly. कोई plan या proposal नहीं होता. या अगर मान लो कोई प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल नहीं है, मान लो आत्मनिर्भर वार्ड हर सिटी में पॉसिबल नहीं है, तो यू विल बी मतलब उसको क्लेम नहीं कर पाएगी, उसकी मार्क्स उनको नहीं मिलेंगे. Okay, okay. Yeah. Pampa? हाँ, पापा. तो मतलब वही हुआ ना कि यहाँ पे जो जो ऑल इंडिकेटर्स में से वो अपने हिसाब से कर सकते, काम करना है उनको, एक्शन प्लान बनाना है, ऐसा है ना. यस, मतलब ऑल yes. इंडिकेटर्स में ही करना है ऐसा नहीं है, जो डुएबल है उनके लिए वही वो चूज करके उसके ऊपर एक्शन प्लान बना. यस, बट सिटीज करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क चाहिए इसलिए. Okay. Pampa. So Pampa was asking कि what is this ugly Indian हाँ, group? ये अगली इंडियन Yeah. ग्रुप अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे ये बना, कैसे कौन लीड करता है, मतलब क्या है इसमें? हाँ, तो ये बेंगलोर बेस्ड एक मतलब टेकीज मतलब आईटी में काम करने वाले लोग हैं. तो ये जस्ट एक ग्रुप है, कुछ एनजीओ नहीं है, जस्ट लाइक माइंडेड पीपल है जो एक साथ आए और उनको गार्बेज इशू के ऊपर काम करना था. तो पहले तो वो लोग क्लीन करते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि ये हम लोग क्लीन कर रहे हैं लेकिन लोग फिर भी वहां पे कचरा डाल रहे हैं. तो बिहेवियर चेंज के लिए उन्होंने वो पेंटिंग एंड म्यूरल्स एंड प्लांटेशन ऐसे आइडिया उन्होंने लाने शुरू कर दिए. तो मोर देन 200 इवेंट्स उन्होंने किए हैं और बहुत सारी जगह पे उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बेंगलोर में. Okay. Are there And any? if I can add, Yeah. sorry, I just wanted to add to Vilas. So the Ugly Indian actually was as a result of issues that were persisting in a specific area in Bangalore, and which is why these techies like Vilas said. And initially, I think the interesting part of their method of working was they did not claim they claim to be just faceless people. Like they claim that nobody leads them, they are just an average citizen. So they increased a lot of interest in their group and in their work. Because of that, a lot of people didn't know who these people were and why they were so interested in these civic issues, and they would most often carry out all their work रात को. तो लिटरली उनका मतलब अप्रोच था वैसा. आई डोंट नो अभी क्या है. आई थिंक दे आर far more open and less mysterious now, but initially they would just come at an odd hour in the day, finish their work and sort of not take credit, not claim that they have done the work and all of that. So that actually worked quite well in its initial days, from what I've heard. I just wanted to add that. Now they have like collaborated with BBMP, so मतलब गवर्नमेंट यूएलबी में खुद ने उनको अप्रोच किया फॉर सच इनिशिएटिव. So they are quite well known now. Yeah. Kedar is asking ki how is the city report card created? You can hardly trust at least the Mumbai data which is put up on the Swachh Sarvekshan website. So the credibility of the data and like how this report card is created. Yeah. तो ये सैंपल बेसिस पे होता है. तो हर वार्ड में दे विल आस्क 10 सिटीजन की आपके यहाँ पे सोर्स सेग्रीगेशन होता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं. तो इनिशियली इतना उस पर विजिबिलिटी नहीं था कि कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, लेकिन अभी बहुत सारा मिनिस्ट्री ने यूएलबी को बताया कि आप इसका प्रमोशन करो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, ताकि लोगों को पता चले. और ये वेबसाइट भी उन्होंने ओपन की है कि सिटी को कैसे मार्क दिए गए हैं, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हैं. Vedant?
यस, तो मेरा क्वेश्चन मेनली ये था कि जो रिपोर्ट कार्ड सिटीज को भेजना होता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रिपोर्ट कार्ड पब्लिक होता है क्या? तो कि पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं क्या वो? और मेनली बिकॉज मैं अभी जस्ट एसबीएम अर्बन चेक कर रहा था, उस पे भी हमारे कल्याण डोंबिवली का इट इज शोइंग 99% वेस्ट जनरेशन वर्सेस प्रोसेसिंग. But if I check the satellite imagery of our landfills in the city, तो उनका तो साइज मतलब बढ़ते ही जा रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट काउंट्स एज प्रोसेसिंग ओवर देयर. या तो ये जनरेटेड वेस्ट मतलब उसका पॉपुलेशन का एक स्रोत होता है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, एंड देन वो कलेक्शन भी क्लेम करते हैं तो उसका वो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं. मतलब कई जगह पे भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 100% सही भी होता है या नहीं, लेकिन उसको अगर यूएल भी क्लेम करता है तो उसका प्रूफ भी उनको देना कंपलसरी होता है, और उसको वैलिडेट थर्ड पार्टी करती है कि सिटीजन को वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑन साइट आके भी हर एक वर्ड में 10 सिटीजन का एक इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनको वो पूछना होता है. Okay. Dr. Ghosh, like, do you want to share a bit more details about the work that you are doing in Durgapur? गुड आफ्टरनून. आज जो क्लास हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ. हम लोगों का बहुत सारे जानकारी मिला है. तो अभी क्या है कि दुर्गापुर सिटी में हम लोग जो काम स्टार्ट किया है उसमें गुड रिस्पांस अभी आते हैं, लेकिन हमको 6 मंथ्स चलते है. हम लोग स्टार्ट किया है फरवरी से. तो सर ने जो बताया कि जो स्टेप्स लेने से पीपल के इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हम लोग कर सकते, तो अभी ये वाला हम लोग यहाँ पर लगा हुआ है. तो we are getting good response from the citizens. Moreover, one thing to be discussed, if it is possible, जो हम लोग जो वेट वेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं उसमें देखा जाता है कि people are producing more. How it could be make it rare, मतलब हम कैसे कमती कर सकते हैं, इस थोड़ा जो अगर बताने से हमको पीपल को अवेयर करने में थोड़ा मदद मिलते है. वो आप थोड़ा सोचिए कि जे वेट वेस्ट कैसे हम लोग हाउस में कमती कर सकता है. जो वेस्ट निकालता है उसमें थोड़ा से देखा जाता है कि ड्राई वेस्ट के चलते वेट वेस्ट ज्यादा निकालता है. तो थोड़ा हमको अगर आप लोग बता सकते हैं तो हम लोग इधर में इस एक्सपेरिमेंट लगा देंगे कि दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन. वो थोड़ा आप देखिए. थैंक यू. Vedant, is your hand raised from before, or you want to pitch in? Sorry, it was raised from the floor. Lena? Yeah, I just want to respond to what the person from West Bengal has just asked about how कि wet waste हम कैसे reduce कर सकते हैं. तो देखिए एक्चुअली वेट वेस्ट जो रहता है वो तो सोर्स पे ही उसका निदान हो सकता है. तो वेट वेस्ट में भी जैसे नागपुर में हम लोगों ने काफी होम कंपोस्टिंग के किट्स जो है वो हम लोगों ने घरों में दिए हुए हैं. तो होम कंपोस्टिंग के किट्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के रहते हैं. अगर आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत टाइप्स के कंपोस्टिंग के किट्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. तो होम कंपोस्टिंग किट्स जो रहते हैं उसकी ट्रेनिंग भी जो है वो भी दिया जा सकता है. और जो कंपोस्ट बनाना है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है.
सिर्फ यही है कि उसमें 2-3 चीजें जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि बारिश के दिनों में जैसे कंपोस्ट जो है वो बहुत थोड़ा गीला हो जाता है, तो उसमें वर्म्स होने के का डर रहता है, तो इस वजह से लोग कंपोस्टिंग करने से कतराते हैं। बट अदरवाइज अगर कंपोस्ट का मॉइस्चर लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए तो होम कंपोस्टिंग अगर आप करोगे तो काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो वेट वेस्ट में भी आप 2 प्रकार के वेट वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि कुक्ड वेस्ट जो रहता है वो आप लोग कंपोस्ट में न डालें तो बेटर रहता है। जैसे सब्जियां वगैरह जो रहती है जो हम काटते हैं, वो सब सब्जियां और फिर बाकी जो पत्तियां वत्तियां रहती है वो सब अगर आप डालोगे कंपोस्ट में, और उसमें अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसको अगर डालेंगे ना तो कंपोस्ट जो है उसका क्वालिटी भी एनहांस होता है और कंपोस्टिंग भी जल्दी हो जाता है। तो 45 डेज का साइकिल रहता है, तो इस तरीके से होम कंपोस्टिंग के किट्स काफी अवेलेबल है। और वेट वेस्ट जो है वो घर पे ही उसका आप खत बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो बन रहे हैं उसको आप घर पे भी उसको यूज कर सकते हैं अपने गमलों में, या उसके पैकेट्स बना के उसको बेचा भी जा सकता है। या Yeah. Thank you, Leena. Vilas. Sakshi, just to add to Kedar's comment, हम्म। तो 2016 में ये स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो पहले 2-3 साल ऐसे केसेस हुए कि एसेसर रैंडमली सिटीज में आता था, तो और उसको फोटोज निकालने होते हैं अलग अलग जगह पे। तो कुछ लोगों ने क्या वहां पे क्या किया कि वो अलग अलग फोटो निकाल रहा है, तो उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए लोग, उसका आई कार्ड दिखाया उसने तो भी उसको लेके गए। तो ये अवॉइड करने के लिए उसके बाद सर्कुलर निकाला मिनिस्टर ने कि यूएलबी कैन असिस्ट द असेसर इन गेटिंग द फीडबैक। तो यूएलबी कैन ओनली असिस्ट, मतलब उसको आप एरिया दिखा सकते हो या फिर सिटीजन से मिलवा सकते हो। तो वो पॉइंट एक्चुअली है डिस्कस करने के लिए। तो ये असिस्टर का काम एंड यूएलबी का दोनों का काम इजी करने के लिए ऐसा सर्कुलर निकाला गया है। तो दैट्स द ओनली पॉइंट आई वाज अबाउट टू से। हाँ Natasha. Natasha. So I actually had a question, Vilas. Sorry if we don't have the answer, maybe we can find out. But ये जो assessor हैं, जो third party assessor हैं, उनका क्या मतलब general profile या कौन से type के ये assessor? Are they companies like I don't know KPMG type, or who are these assessors that are hired? Yeah. So these are assessor from companies only. तो जिनको एनवायरमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होती है, तो ऐसे लोग असेसर बन के आते हैं एंड दे असेस द ऑन फील्ड डाटा। Got it. And just follow up, तो जो and the assessors are blanket for all cities, na? It's not like it changes for state to state or city to city or whatever. It's centrally changes. done. Yeah. Oh, it's centrally changes. done, but Okay. अलग-अलग लोग होते हैं अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए। Okay, got it. एंड वन मोर थिंग ये है कि मान लो अगर अर्बन लोकल बॉडी ने क्लेम भी किया कि हमारे यहाँ पे 97% सेग्रीगेशन है, आप उसको मतलब आप मानते नहीं हो, तो अर्बन लोकल बॉडी हर जो उनका बिन फ्री सिटी का जो उसको स्टार रेटिंग के लिए उनको अप्लाई करना होता है, तो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है उनका कि वी आर डिक्लेयरिंग आवर सिटीज एज 5 स्टार सिटी या फिर 7 स्टार सिटी। तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि आपने कैसे ये 5 स्टार से बिन फ्री सिटी या फिर वेस्ट फ्री सिटी डिक्लेयर किया, तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यूएनबी से मांग सकते हो। तो ये उनको 2 न्यूज़पेपर में देना कंपलसरी होता है। तो ये 15 डेज का उनका विंडो होता है कि इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एंड ये एप्लीकेशन इज अवेलेबल, मतलब आप अपने लोकल यूएलबी के यहाँ जाके एप्लीकेशन मांग के भर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन
And if there are more people raising the objection, obviously it's better, na? Yes, yes. अगर हाँ, मोर पीपल अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो यूएलबी को उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. Lina? Yeah, so I just wanted to say that the whole crux of this Swachh Sarvekshan is that there has to be a lot of citizens participation happening. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो केदार बार बार लिख रहे हैं कि काफी फजिंग होता है डेटा का, ये फजिंग तो होता ही है. मतलब आप थर्ड पार्टी भी लेकर आते हो तो बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्वच्छ सर्वेक्षण सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. 2016 से मैं यूएलबी के साथ में बहुत क्लोजली स्वच्छ सर्वेक्षण पे काम कर रही हूँ. तो मैंने देखा है कि फजिंग तो होता है, बट कैसा है कि सिटीजन्स को बहुत अवेयर होने की जरूरत है. और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन और जो भी सिटीजन्स का जो डाला गया है, पहले तो ये होता था कि सिटीजन्स के फोन नंबर्स भी नहीं रहते थे यूएलबी के पास में फीडबैक लेने के लिए. तो पहले वो एक टोल फ्री नंबर देते थे, उस पे कॉल करना होता था और फिर उसमें वो अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसमें आपको जवाब देने पड़ते थे कि ये 5 क्वेश्चंस रहते थे, उसके जवाब आपको देने पड़ते थे. तो पर हाँ, वो तो है. मतलब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण में. सिटीजन्स को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा यूएलबी को कि भाई आपने 5 स्टार रेटिंग में कैसे अप्लाई कर लिया और मतलब क्या हो गया. बट एक्चुअली कैसा है ना कि स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बहुत सारे सिटीजन्स में इतना अवेयरनेस भी नहीं है. मतलब ये जो एकदम डिटेल में जो हम टूल किट में भी अभी डिस्कस किए हैं, ये है ना काफी, मतलब जब से 2016 से शुरू हुआ तब से ये हो रहा है. मतलब ये काफी समय से यही चीजें आ रही है. बट उसका ना आजकल एसबीएम में स्वच्छ सर्वेक्षण में स्पेशली बहुत सारा है ना, बहुत थियोरेटिकल हो गया है. इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे बहुत होता हुआ दिखता नहीं है. मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे भी एक्चुअली. बट कुछ इनिशिएटिव्स जो है ना, जैसे एसबीएम और एनयूएलएम का कन्वर्जेंस, ये सब जो चीजें आई है ये काफी अच्छी है एक्चुअली. और हम लोग नागपुर में अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. या कुछ सिटीज में हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि मान लो आप इंदौर जाते हो तो जब जैसे आप ट्रेन से उतरते हो, आप रिक्शा लेते हो तो रिक्शा वाला खुद बोल देता है कि यहाँ पे आपको थूकना मना है या फिर कचरा बाहर डालना मना है. तो ऐसे भी हम मतलब पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं इसका. कुछ जगह पे यूएलबी फॉल्स क्लेम भी करती है और लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो उनका डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चल जाता है. Yeah. Okay, so I don't see any other question. So I think I'll try to wrap up the session now. So all in all, the crux of this is कि this is a very big program जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो ये रैंकिंग हर साल जो होती है, it's a very extensive program also, and it's a very big program, and like it does have a lot of opportunities because like एक overall जो session हमने discuss किया कि what can citizens do. But वही है कि like the way it is presented is it's like technical, a lot of information and a lot of things, and I think that's where like the people like us who are present here like comes in कि मतलब हम हमारे हाउस में या हमारे सिटी में एटलीस्ट जो प्रोग्राम के ऊपर like जो अवेयरनेस है या like टूल किट के बारे में जितना डिटेल्स like हम शेयर कर सकें, तो ताकि वहां से एक बार ये थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट होगा. सो दैट्स फ्रॉम वेयर वी कैन like talk about the opportunities and like where we can like help the ULBs, or even अगर हमको questions या concerns raise करने हैं अपने. So I think yeah, that all starts from like knowing about the program and like spreading awareness about the program. So like this is one session, like for example that like we did, but I think all of us can do like something like this at our own levels in the cities and like the stages that we are working in. Yeah. So we will share the recording of the session and we'll share the PPT of the session as well. And agar uske baad bhi like if there are any queries or something that so we can like take that up via email. Yeah, so thank you all for participating and joining the session once again, and have a great evening.